Namaste everyone and welcome to Super Rats Cat. Now today, just like we did in some of the previous sessions in the series, we will be discussing a very interesting concept from the topic of time, speed and distance. And as usual, just one single concept will enable you to solve questions very quickly for all the questions of the similar type that have appeared so far in the CAT examination. And as I said earlier as well, it will tremendously help you not just for CAT but also for all the other exams like XAT, NMAT, SNAP, CMAT and so on. So start करते हैं what is this one particular concept on time speed distance. So if we look at this typical scenario, a very lengthy question typically can be formed where there is a person A at the left end, there is another person B at the right end. A travels from this left to the right end, B travels from the right end towards the left end. अज्यूम करते हैं कि स्पीड्स जो करस्पॉन्डिंग स्पीड्स हैं इन दोनों की वो है VA और VB. दे मीट आफ्टर सर्टेन टाइम T एट अ पॉइंट P. तो ये लोग A इस तरफ जा रहा है, B इस तरफ जा रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम T के बाद बीच में कहीं पॉइंट P पे मिलते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी टूवर्ड्स ईच अदर्स एंड पॉइंट्स. तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद पर्सन B, पर्सन A, दे विल कंटिन्यू देयर जर्नी ऑनवर्ड्स. B आगे की तरफ जाएगा, यहाँ पहुंचेगा B थोड़ी देर बाद कभी, और बाद में फाइनली कभी A इस एंड पॉइंट पे आ जाएगा. जितना टाइम B को लगता है टू कवर दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी इज TB. तो ये TB क्या है? TB इज द टाइम टेकन बाय B टू कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी. एंड सिमिलरली व्हाट इज दिस TA? This TA is nothing but the time taken by A to complete the remaining part of the journey. अब इस सारे डिस्कशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बनती है विच इज दैट ऑफ T, TA एंड TB. तो बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं. वी आर नॉट डिस्कसिंग द डेरिवेशन हियर. प्लीज रिमेंबर दैट T इज इक्वल टू नथिंग बट अंडर रूट ऑफ TA इंटू TB. तो द टाइम दैट दे टेक टू मीट is equal to under root of product of TA and TB. ठीक है, ये पहली रिलेशनशिप है. Similarly, second relationship exists between VA, VB, the speeds of A and B, and the corresponding times that they take. So VA upon VB is equal to under root of what? The reciprocal of the times that they have taken. तो प्लीज रिमेंबर VA न्यूमरेटर में आ रहा है तो यहाँ पर न्यूमरेटर में TB आएगा अपॉन TA. तो प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट केयरफुली दैट VA अपॉन VB इज एसेंशियली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ TB अपॉन TA. और थर्ड इंटरेस्टिंग पार्ट रिलेशनशिप का आएगा कि ये पूरा डिस्टेंस, द एंटायर डिस्टेंस ऑफ द ट्रैक, तो डिस्टेंस D कैसे निकल सकता है? तो D बहुत इजीली निकल सकता है. टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू मीट एट अ पॉइंट P इज T. तो इतने टाइम में A ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? VA इंटू T. और B ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? VB इंटू T. तो T टाइम्स ऑफ VA प्लस VB, दिस विल बिकम आवर थर्ड इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप. तो अगर आपको ये तीन रिलेशनशिप्स याद है, प्लीज लुक एट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर ऑन योर ओन. आई विल टेक फ्यू एग्जांपल्स माई सेल्फ. Believe me, you'll be very easily able to solve a lot of questions. Let's jump right in to such questions. I'm assuming that you will be able to remember the three relationships that are in front of your slide. If required, please take a screenshot now, make a note in your formula book and use it heavily whenever such a question appears in either actual CAT or sometime now when you appear for mocks. तो ऐसा एक क्वेश्चन देखते हैं. This is actually from CAT 2023, just last year slot 1. Just look at the story. Arvind travels from town A to town B. Surbhi travels from town B to town A. Both starting at the same time along the same route. Same time पे same route पे travel कर रहे हैं. After meeting each other, Arvind takes 6 hours. After meeting each other, मतलब ये Arvind का टाइम TA मान सकते हैं, सुरभि का टाइम TS मान सकते हैं. इफ अरविंद एंड सुरभि के लिए इनिशियल्स A और S दे दे तो कैन आई से एक रिलेशनशिप तो यहीं से आ जाएगी इनकी स्पीड्स की. तो स्पीड की रिलेशनशिप क्या आ जाएगी? Can I write the relationship for speeds as VA upon VS should be equal to under root of TS upon TA. अब हमें TS time taken by Surbhi is 24, Arvind is 6, 24 by 6 under root of 4 कितना जाएगा 2. हमें अरविंद की स्पीड भी गिवन है. Yes, in the next sentence itself Arvind traveled at 54, so this speed is 54. तो सुरभि की स्पीड डायरेक्टली आपको पता पड़ गई. सुरभि की स्पीड कितनी आ जाएगी? 27. और हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन टाउन A एंड B. तो डिस्टेंस के फॉर्मूले के लिए हमें T भी निकालना पड़ेगा. T कितना रहता है?
टी इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ टी ए इंटू टी बी। ओरली निकल जाएगा, अरविंद का टाइम इंटू सुरभि का टाइम, अंडर रूट ऑफ 144 विच इज वॉट 12। तो अब हमारे पास दोनों की स्पीड्स है 54 और 27, और टाइम टी फॉर द मीटिंग इन बिटवीन वो भी है। तो डिस्टेंस कैन वेरी इजीली बी कैलकुलेटेड एज टी इंटू वी ए प्लस वी बी, जो हमारा जनरल फॉर्मूला था। टी की वैल्यू इज 12, वी ए इज 27, वी बी इज 54, 54 प्लस 27 कितना होगा 81। तो हमारा आंसर है डिस्टेंस का 81 इंटू 12। 81 इंटू 12 ओरली कैसे करें, 81 टन 810 और फिर 162, 810 plus 162 will be 972. So our final answer becomes 972. Straightforward question, would hardly take you few seconds to solve it in the actual exam. बढ़ते हैं towards the next example. CAT 22 मतलब think about it, just उसके previous year में भी सेम question type आया है। Train A and B start traveling at the same time towards each other with constant speeds from stations X and Y. Train A reaches station Y in 10 minutes. Now understand, this is the total time given, not the TA value. The entire time for A to reach from one endpoint to another, while B takes 9 minutes to reach X after meeting train A. मतलब ये वाला टाइम तो TB given है. This time is TB. We don't know what is T. ये वाला टाइम क्या है, 10 मिनट्स में पूरी जर्नी कर लेती है। तो कैन आई से टी ए की जो वैल्यू आएगी, टी ए की जो वैल्यू आएगी वो दैट विल बी नथिंग बट 10 माइनस टी। थिंक अबाउट इट, ए पूरा टाइम ही 10 मिनट्स ले लेते, तो 10 में से माइनस कर देते हैं वो टाइम जो दोनों के मिलने का है, तो बचे हुए टाइम में टी ए की वैल्यू आ जाएगी। एंड वी नो द रिलेशनशिप टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी ए इंटू टी बी। तो मैं पुट कर रहा हूँ 10 माइनस टी इंटू टी बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 9। तो इस रिलेशनशिप को सॉल्व करना है और टोटल टाइम टी निकालना है। फटाफट क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं। सो होल स्क्वायर करते हैं, विल गेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 माइनस टी। राइट, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में हार्डली एनी टाइम लगेगा आपको। यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट एज टी स्क्वायर प्लस का 90 व्हेन यू ब्रिंग इट टू लेफ्ट हैंड साइड, माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट माइनस 90 आए, लेकिन सम कितना है, सम आए प्लस का 90। तो कहना है 15 6 90 होता है। तो चेक करो, हमें प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए लेकिन सम का फैक्टराइजेशन पॉजिटिव चाहिए। तो आई कैन स्प्लिट इट एज टी प्लस 15t, मतलब टी स्क्वायर प्लस 15t माइनस 60। तो आपके दो रूट्स इफेक्टिवली क्या जाएगी, -15 और 6। तो अगर -15 और 6 आपके दो आंसर्स हैं, करेक्ट आंसर नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे, टी की वैल्यू कितनी जाएगी 6। एक तरीका क्वाड्रेटिक को पूरा सॉल्व करके था। द अदर कुड हैव बीन जस्ट सिंपली चेकिंग बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी एनीथिंग लेस देन 10। तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। 10 से छोटा आंसर है बिकॉज 10 माइनस टी है, तो 10 से छोटा कोई भी फैक्टर 3 4 5 6 ऐसी वैल्यूज पुट करके चेक कर ले। यू विल रियलाइज कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, और अगर 6 रख दे तो 9 4 सा भी 36 होता है। तो 6 is the answer. You would not have been required to solve this. But then towards next question quickly. This is a question from CAT 2020. Again, helps you understand that very frequently the same concept is used by CAT over and over again. तो क्या बोल रहे हैं, car 1 car 2, car 1 travels from A to B, car 2 travels from B to A, leaving at the same time. After meeting each other, they take 45 minutes and 20 minutes respectively. तो ये car 1 का टाइम है. So let's call it T1. This is car 2 का टाइम. Let's call it T2. ठीक है. अब आगे बोल रहे हैं कार 1 की स्पीड दी है, तो आई डायरेक्टली राइट V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 बाई T1। बी केयरफुल, 20 बाई 45, 20 बाई 45 सिंप्लीफाई करोगे तो 5 से कैंसिल होगा 4, यहाँ पे 9, अंडर रूट ऑफ 4 बाई 9 कितना आ जाएगा 2 बाई 3। V2 की स्पीड निकालनी है फटाफट, 60 इंटू क्या कर सकते हैं डायरेक्टली 3 बाई 2, सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ जाएगा 90। दैट्स आवर आंसर, हार्डली टेक्स यू फ्यू सेकेंड्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर लाइंस पे, कैट 2020 स्लॉट 2 का क्वेश्चन। राम एंड रहीम, राम runs from A to B, while रहीम runs from B to A। सेम चीज, राम A से B जा रहा है, रहीम B से A आ रहा है। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, राम एंड रहीम रीच देयर डेस्टिनेशंस इन 1 मिनट एंड 4 मिनट। 1 और 4 दिया है, डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ 4 बाई 1 कर देंगे। कैन आई से द रेशियो ऑफ राम स्पीड टू रहीम स्पीड इज नथिंग बट 2:1। करेक्ट आंसर इज 2:1। तो आई होप that you will just observe the question and get the answer within few seconds अगर ये तीन relationships याद हैं। And look at the history of CAT 23, 22, 20 में दोनों slots में, slot 3 में भी एक similar question था, थोड़ा सा twist था,
You can practice that on your own, and there are tons and tons of questions that you'll find across exams. For you people, just like I have done so far, there's an interesting practice PDF. If you want to verify the answers of the same, please share your answers in the comments and we'll verify. I hope that you would have liked this concept and will be able to apply this concept when it comes in actual CAT or some other exams. With this, I'll take your leave. Ciao.